I start with the just briefly introduction of this paper, Economic and Commercial Law. Just 10 minutes on that. Then we start with a new chapter. In this paper, Economic and Commercial Laws, we'll discuss the two types of laws, and this is the name given to the class of laws, not one particular law. Economic laws, basically laws which deal with the or regulate different aspects of the economy. Laws which deal with or regulate different aspects of economy, they are called as the economic laws. Collectively, all those laws put together are referred as the economic laws. For example, we can talk about Foreign Exchange Management Act 1999. In short, we call it the FEMA. Foreign Exchange Management Act 1999. This law deals with the foreign exchange matters, and foreign exchange is no doubt a very important aspect of the economy. We have another law called IDRA 1951. Industries Development and Regulation Act 1951. Industries Development and Regulation Act 1951. This deals with the industry. नाम से पता लगा, it deals with the industry. FEMA deals with the foreign exchange. Industry is a part of economy. Foreign exchange is a part of economy. ऐसे बहुत सारे economic laws हैं. We'll talk about consumer laws. That is a Consumer Protection Act dealing with the consumer, and that is Consumer Protection Act. That is again economic laws. So many economic laws are there in your syllabus, and I've just given the example of few. Second part of this paper, that is the commercial laws. See, commercial laws, the meaning of this term, laws which regulate the various commercial transactions. Those laws are called as the commercial laws. Again, it's not the name of one law, it's a collective name given to the various laws. Put together, they are called as the commercial laws. For example, we can talk about Transfer of Property Act. (1882), that's a very important one of the commercial laws. We can talk about Registration Act 1908, that talks about registration of certain documents, कि कुछ documents है जिनका registration कराना mandatory है. Transfer of Property Act applies on the transactions relating to transfer of immovable property. Just opposite of Sale of Goods Act. Sale of Goods Act regulates the transfer of movable property. This applies on transfer of immovable property. और भी बहुत सारे हैं. We have Indian Stamp Act is there. We have what we call Arbitration Act is there. So many are there. And this is what is the broadly the meaning of the term economic laws and the commercial laws, and given some example. But बहुत सारे topics आपके syllabus में हैं और अलग-अलग topic के अंदर अलग-अलग laws हैं. Now we come to the structure of this paper. इस पेपर को as per the syllabus prescribed by the ICSI क्या structure बनाया हुआ है? Let us try to understand. See, according to the syllabus prescribed by the ICSI,
this paper, in short we call it the ECL, has been divided into two parts. Part A, 70 marks, and part B, obviously of 30 marks. In part A, you have the 12 chapters, and most of the chapter, one law. But in some chapters, even in one chapter, we have more than one laws. But they are obviously related with each other. एक chapter में 4-5 है तो सब interrelated laws हैं. And out of this 12 chapters, बस वैसे ज़्यादातर chapters में एक chapter एक law. ज़्यादा economic laws हैं, few are commercial laws. In part B, we have 8 chapters. Again, more chapters are pertaining to economic laws, few chapters are pertaining to the commercial laws. तो ओवरऑल देखेंगे ये पेपर में वेटेज ज्यादा इकोनॉमिक लॉज की है एंड लेस वेटेज ऑन द कमर्शियल लॉज. आप कह सकते हैं अराउंड 2/3 ऑफ द पेपर इज इकोनॉमिक लॉज, 1/3 ऑफ द पेपर इज कमर्शियल लॉज. पेपर पैटर्न वो भी थोड़ा सा पता होना चाहिए. इन एग्जामिनेशन पार्ट ए का पैटर्न ये होगा. क्वेश्चन नंबर 1 will be of 25 marks. Question number 2, 3, 4. Along with 2, you will have one choice. There another question 2A. Students may attempt either 2 or 2A. Either 2 or 2A. And यहाँ हर एक question 15 marks होगा. Question number 2, 3 and 4. 15 marks into 3, that makes a total of 45 marks. 25 plus 45, that makes a total of 70 marks. ये पार्ट है आपका. पार्ट बी, that is of 30 marks. Here you will have the question number 5 and question number 6, and along with 6 they will be on choice 6A. And again, each of the question 15 marks into 2, that makes a total of 30. ये पेपर पैटर्न है. तो आप देखें दो जगह चॉइस है. एक्चुअली इनफैक्ट सीएस में आज के दिन मोस्ट ऑफ द पेपर्स में पैटर्न ये है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन चॉइस दो ही जगह है. जैसे कंपनी लॉ में 2 और 2A, 3 and 3 एक साथ दे दिया, लेकिन चॉइस दो ही जगह, बाकी 4 कंपलसरी क्वेश्चन है. देयर इज नो चॉइस. यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज कंपलसरी, दिस इज कंपलसरी, दिस इज कंपलसरी, दिस इज कंपलसरी. 4 क्वेश्चन में 1, 3, 4 and 5 में कोई चॉइस नहीं. 2 के साथ यू हैव 2A, 6 के साथ यू हैव 6A. कंपनी लॉ में 2 और 3 दोनों के साथ ऑप्शन था, लेकिन 6 के साथ नहीं था. मोर और लेस पैटर्न है सेम सिमिलर है कि दो जगह चॉइस होगी, बाकी सब कंपलसरी क्वेश्चन. वन मोर थिंग, अभी कंपनी लॉ में डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज द लेवल ऑफ नॉलेज द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव. एक्सपर्ट लेवल. क्योंकि एक पेपर एक लॉ, और मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द एंटायर कोर्स. बट ईसीएल में ऐसा नहीं है. रीजन बीइंग, ईसीएल में 1 पेपर, अभी मैंने बताया 12 + 8 20 चैप्टर्स हैं, और 20 चैप्टर में करीब 25+ लॉज हैं. कुछ चैप्टर में एक से ज्यादा लॉज हैं. तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव द एक्सपर्टाइज. इसलिए यहां पे जो लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड है, दैट इज वर्किंग लेवल नॉलेज. ओनली द मेन थिंग्स ऑफ द ईच टॉपिक, वट एवर इज सिलेबस, एंड बट एज सच वी आर नॉट गोइंग टू द डीप. Reason being, so many laws in one paper, and that's why the level of knowledge required is the working level knowledge. Is that clear? Now, इस पेपर में एक और बात, यहाँ बेसिक सा कोई कंसेप्ट नहीं है. ब्रॉडली इकोनॉमिक लॉज क्या होता है मैंने ब्रॉडली बता दिया, कमर्शियल लॉज क्या होता है बता दिया. ऐसा कोई बेसिक सा, जैसे कंपनी लॉ के पेपर में विदाउट बेसिक्स आप कुछ नहीं समझ सकते. वी स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 0 लेवल. हियर इन दिस पेपर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी चैप्टर, बिकॉज 1 चैप्टर 1 लॉ. एंड वंस द चैप्टर इज ओवर, दैट लॉ इज ओवर. आप दूसरा चैप्टर कोई नया लॉ स्टार्ट करें, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, सारे अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग लॉज हैं. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल लॉ. एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. क्या टॉपिक है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000. वेरी स्मॉल टॉपिक एंड एक छोटा सा टॉपिक. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें आज डिस्कस करेंगे और थर्सडे को हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक. देखिए टॉपिक है, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है इन पार्ट ए. पार्ट ए में 12 चैप्टर्स हैं, तो सेकेंड लास्ट चैप्टर इन पार्ट ए.
बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना कि सर सीधा चैप्टर 11 स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सारे अलग अलग लॉज हैं, वन चैप्टर वन लॉ. So I start with the concept or the topic, that is Prevention of Money Laundering Act. That is one of the economic laws. This is one of the economic laws. Prevention of Money Laundering Act 2002. इसमें जो मेन एक्सप्रेशन है, दैट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग, एंड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इज वेरी क्लियर. द पर्पस ऑफ दिस लॉ इज टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग. प्रिवेंट और प्रमोट? प्रिवेंट. नाम से पता लग रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. सब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है पहले ये समझेंगे. And the purpose or objective of this act is to prevent that, कि हम ये नहीं होने देंगे, will not allow this to happen. ये कुछ गलत है, illegal है, that's why the law does not allow that to happen, and that is the purpose. तो इस एक्ट के जो प्रोविजन है उसका ऑब्जेक्टिव ये हुआ किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, प्रिवेंशन. नाउ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है देखिए, एक तरफ आई एम राइटिंग ब्लैक मनी, if someone tries to convert, please pay attention here, if someone tries to convert the black money into the white money, this process of conversion of black money into white money, this process is called as the money laundering. If someone asks you, what is the concept of and what is the meaning of the term money laundering, is a process by which someone tries to convert the black money into the white money. कि अगर आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करें तो जो भी प्रोसेस, जो भी मेथडोलॉजी, जो भी तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर डूइंग द सेम, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड एज द मनी लॉन्ड्रिंग, कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू द व्हाइट मनी. नाउ ब्लैक मनी का मतलब क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखिए ब्लैक मनी के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. अच्छा किसी ने genuine, first try to understand what is the concept of black money. किसी ने मान ले जेन्युइन तरीके से पैसा कमाया, लेकिन उस इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया, हाइड कर लिया, क्या इसको टैक्स इवेजन कहते हैं? और उसके बाद टैक्स पे नहीं किया तो ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन. इज लीगल है इलीगल? इलीगल. बट क्या इनकम उसने गलत कमाई थी? नो, इनकम जेन्युइन थी, डिड नॉट डिस्क्लोज इन द इनकम टैक्स रिटर्न, डिड नॉट पे द टैक्स ऑन दैट, एंड दैट्स अ टैक्स इवेजन. वो भी ब्लैक इनकम होती है. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. क्या बहुत सारा पैसा कमाया था बाय इंडल्जिंग इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्राइम्स? ये सुनो. अच्छा आपने सुना देयर आर पीपल हु आर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, कि भैया आपको किसी को मरवाना है, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको पैसे दीजिए, जो पैसे चार्ज करेंगे एंड वो आपके लिए किसी का भी मर्डर कर सकते हैं. सुना हुआ ऐसे? देयर आर पीपल हु डू दिस एंड दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट किलर्स. ठीक है, जो एक हिंदी में आपने सुना, फिल्मों में एक भाषा यूज है सुपारी देना, उसकी सुपारी दे दी. ठीक है, तो सुपारी, पान, कत्था, बहुत सारी चीजें. ठीक है, तो ये बम्बईया भाषा है, बॉम्बे में ये सब टर्म यूज होते हैं, तो फिल्मों में बॉम्बे का बड़ा इफेक्ट है ना, कि फिल्म इंडस्ट्री बेसिकली बॉम्बे, तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आते हैं. अच्छा वो किसी के लिए किसी के कहने में मर्डर करते, क्या बदले में पैसे मिलते? तो क्या वो जो पैसा उसको मिला, इट इज अर्न्ड इन अ जेन्युइन वे और इलीगल वे? आउट ऑफ दैट मनी जनरेटेड ऑफ क्राइम. क्या बहुत सारे लोग स्मगलिंग एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, क्या उससे पैसा कमाते हैं, तो क्या वो जेन्युइन तरीके से कमाया या क्राइम? क्राइम. सुना वाइल्ड लाइफ की स्मगलिंग होती है. वाइल्ड लाइफ समझते हो, जैसे जानवर जो कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, उनके बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग होती है जो डिफरेंट चीज के लिए यूज किए जाते हैं. क्या ये भी इलीगल चीज है? ये सुनो, आर्म्स एंड एमुनिशंस, आर्म्स एंड एमुनिशन को इलीगल तरीके से उसका बिजनेस करना. फ्लैश ट्रेड, जो देह व्यापार जिसको हिंदी में बोलते हैं आपको, वो इलीगल. उस तरीके से बहुत सारे
मतलब आप सुनते हो कि कितनी बार सुनोगे, कितने सारे हमने क्राइम पेट्रोल से देखा होगा साहब, इलीगल रैकेट चल रहे हैं ऑल दैट, ठीक है, क्या उसके थ्रू बहुत इनकम जनरेट हो रही है? ये सुनो, ये सब क्या है? दीज आर ऑल मनी विच इज जनरेटेड आउट ऑफ क्राइम्स. इस लॉ के अंदर, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वी आर नॉट कंसर्न विद द ब्लैक मनी विच इज रिलेटेड टू टैक्स इवेजन. वो भी ब्लैक मनी होती है कि आपने जेन्युइन तरीके से कमाया, टैक्स नहीं दिया, डिस्क्लोज नहीं किया, उस ब्लैक मनी की हम यहां बात नहीं कर रहे. इसे मैंने डिस्टिंक्शन बताया कि साहब ब्लैक मनी भी कई तरह की होती है. हियर वी आर ओनली कंसर्न विद दैट ब्लैक मनी विच इज अर्न आउट ऑफ क्राइम्स. मतलब उसको कमाया ही गलत तरीके से गया. एक तो होता कमाया आपने सही तरीके से बट टैक्स नहीं दिया, एक होता कमाया ही गलत तरीके से गया, उस ब्लैक मनी की हम बात कर रहे हैं अंडर दिस एक्ट. अच्छा, एक्चुअली जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया, कमाया सही तरीके से था, क्या वो भी ऑफेंस है? लेकिन उसके लिए प्रोविजंस टू डील विद दैट प्रॉब्लम, वी हैव द प्रोविजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट. वहां प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि टैक्स इविजन की पेनल्टी लगेगी, प्रोसिक्यूशन होगा, जो भी है, दैट विल बी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. मतलब अलग सिचुएशन के लिए वी हैव डिफरेंट लॉज. तो फॉर दिस, यहां जो हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हियर ब्लैक मनी मीन्स द मनी विच इज जनरेटेड आउट ऑफ क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी से जो पैसा जनरेट किया था, अर्न किया था, दैट ब्लैक मनी वी आर टॉकिंग अबाउट. इट मीन्स यहां ब्लैक मनी किससे रिलेटेड है? क्राइम. इज दैट क्लियर? अब देखिए, मान ली किसी ने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज करके, इन्वॉल्व होकर कुछ ब्लैक मनी कमा लिया. आपको लगता है कि अब ब्लैक मनी डायरेक्टली यूज करना आसान होता है? वेरी डिफिकल्ट. कुछ 100 सवाल उठते हैं उसके ऊपर कि ये पैसा आया कहां से. आया ना, कल परसों एक बात इसी हो रही थी, यार कैश पड़ा हुआ है, टैक्स, नॉट दिस वन बट सिमिलर कंसेप्ट, टैक्स नहीं दे रखा, अनटैक्स लोग कैश रखे रहते हैं. इसकी ज्वेलरी खरीद लेते, कोई बता रहा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मैं दिक्कत कैसे नहीं है? इनकम टैक्स रेट मार देगी अगर मान ली इनकम डिपार्टमेंट और आपके ज्वेलरी, तो क्या आपको सोर्स पूछेगी साहब ज्वेलरी आई कहां से? ऐसे थोड़ी वो आगे फ्री में गिफ्ट में बांट के चला गया. तो आई कहां से? और आपने बताया कि साहब ने इस पैसे खरीदे, बोलो वो पैसा आपने डिस्क्लोज नहीं किया अपनी इनकम में, तो टैक्स इवेजन तो वो भी है. बट आप जब अगर कोई ब्लैक मनी, इट्स नॉट सो इजी टू यूज. पीपल फर्स्ट ट्राई टू मेक इट वाइट, चाहे वो इनकम आपको चाहे क्राइम से आई हो, चाहे वो टैक्स इवेजन. टैक्स इवेजन वाला हमारे इस टैक्स से मतलब नहीं है, बट स्टिल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं. लोग उसको पहले व्हाइट बनाने की कोशिश करते, बिना व्हाइट को बनाए आप उसको यूज नहीं कर सकते. एक चीज, एक बंदा है, वो मान लिया कुछ गलत काम करके पैसे कमाता है. उसने क्या किया, आपको एक 10 करोड़ का एक प्लॉट खरीद लिया, उसका बिल्डिंग खड़ी कर दी. सवाल उठ जाए कि साहब ये बिल्डिंग और प्लॉट खरीदा, इसके पैसा कहां से? अब मान लिया उसकी जो डिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है, जो इलीगल तरीके से वो कमा रहा है वो अलग है, लीगल तरीके से कमा रहा है, उससे उतना बड़ी प्रॉपर्टी कोई खरीद ही नहीं सकता. क्या क्वेश्चन उठेंगे? तो अपने आप रिलेट हो जाता ना चीजें कि भाई ये चीज इतना हो ही नहीं सकता. इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग. इसका मतलब जिसने भी क्राइम करके ब्लैक मनी जनरेट किया है, इनकम जनरेट की है, क्या वो डायरेक्टली यूज कर लेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? वाइट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? वाइट. एंड इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग इज द कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू द व्हाइट मनी. It means anyone who is generating the black money by indulging into crime, they try to convert into white so that they can use the same. And that process is called as the money laundering. मुझे बताइए इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? To allow money laundering to happen or to prevent that? Prohibit, control, उसको रोकना है कि साहब ना हो मनी लॉन्ड्रिंग. Yes or no? अच्छा, जब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी तो क्या ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट होगा? ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट नहीं होगा. ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या जिन्होंने ये अर्न कर तो लिया बट यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. अच्छा, जब यूज नहीं कर पाएंगे तो दिमाग में एक ख्याल आएगा कि साहब अननेसेसरी क्यों. अच्छा, जो क्राइम करता है क्या उसे पता है कि साहब मैंने कोई गलत काम नहीं किया है? या उसे पता होता है कि मैंने गलत काम किए हैं? पता तो होता है. एवरीवन नोज दैट समवन हु इज इंडल्जिंग इनटू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, दे ऑल नो दैट वी आर डूइंग समथिंग इलीगल. तो उनको डर तो होता ही है. अब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अगर पकड़े गए तो जेल होगी, ये होगा, 50 तरह की चीजें हैं. लेकिन उससे आपने जो पैसा कमाया उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट. लॉ इज नॉट अलाउइंग टू कन्वर्ट. ये सुनो, लॉ में इतने प्रोविजन बना रखे हैं कि आप कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे. तो क्या उसका इंपैक्ट क्राइम रिड्यूस होने पर भी आएगा? हाँ या ना?
क्योंकि आप जब इजीली उस पैसे को यूज जब कर पाते हैं तो बंदे को एक मोटिवेशन मिलता है कि साहब मैं गलत काम कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, व्हाइट में आराम से कन्वर्ट कर रहा हूं और आराम से यूज कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं दैट ऑल्सो हैज द इम्पैक्ट ऑन द क्राइम रेट गेट्स इंक्रीज। लेकिन आप जब यूज ही नहीं कर पाएंगे तो बंदा बोला व्हाई टू टेक अ रिस्क, व्हाई टू इंडल्ज इनटू रॉन्ग थिंग्स व्हेन आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ दैट। तो अननेसेसरली मैं क्यों इतने सारे झमेले पालूं, क्यों मैं गलत काम करूंगी, अल्टीमेटली जो मिल रहा है मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता। आज सेम टैक्स में भी होता है। बोले एक स्थिति ऐसी आ जाए, अभी मैं कुछ जीएसटी के बारे में सुन रहा था, अरुण जेटली और कुछ लोग बोल रहे थे, ही वाज सेइंग दैट कि साहब जीएसटी के अंदर सिस्टम ऐसा बन जाए। अच्छा तुम देखो मार्केट में कच्चे में बहुत काम होता है, गए कुछ सामान खरीदे, कुछ बिल्डिंग मटेरियल खरीदा, कैश पकड़ा दिया, कोई हिसाब किताब नहीं है। इस सब जगह टैक्स इवेजन होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत जबरदस्त इवेजन होता है। कहीं वैट गायब हो रहा है, कहीं सर्विस टैक्स नहीं लग रहा, लगना चाहिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जा रहा है। बोला जीएसटी में ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि जो कच्चे में काम करा उसको लोग दूसरे लोगों से डील ही नहीं करेंगे, अपने आप सिस्टम ऐसा बन जाएगा। जब दूसरे लोगों से डील नहीं करेंगे तो वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा, बिजनेस नहीं कर पाए तो अपने आप आउट ऑफ कंपल्सन क्या करें, उसे व्हाइट में काम करना पड़ेगा। वो यही चाहती गवर्नमेंट। तो कई बार स्थिति ऐसी बना दी जाती है कि साहब आप अपने आप ही सही रास्ते पे आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप आउट हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू रिड्यूस द क्राइम। हाँ या ना? By preventing the money laundering, are we also trying to reduce the crime levels? Yes or no? तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बड़े बड़े सीरियस क्राइम्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए कि वो कम हो जाए, वी नीड टू कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग, वी नीड टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग, वी शुड नॉट अलाउ द ब्लैक मनी टू बी कन्वर्टेड इनटू द व्हाइट, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, जिससे इसका इंपैक्ट क्राइम लेवल पे भी आता है, क्राइम अपने आप रिड्यूस। क्योंकि देखिए यूज जब नहीं कर पाओगे तो बंदा बोले क्यों झमेले में पड़े, बट इट्स वेरी इजी टू यूज। अच्छा किसी जमाने में अगर मैं टैक्स से कंपेयर करूं, यहां टैक्स से मतलब नहीं बट स्टिल समझाने के लिए, क्या हमारे कंट्री में पहले अनटैक्स इनकम बहुत इजीली यूज हो जाती थी? हाँ या ना? बहुत सारे तरीके थे यूज करने के, लेकिन क्या धीरे धीरे इट हैज बिकम डिफिकल्ट एंड इट बिकम डिफिकल्ट डे बाय डे, मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू यूज द अनटैक्स मनी। अच्छा तो अनटैक्स मनी को जब यूज नहीं कर पा रहे हो तो क्या इंप्लीकेशन क्या आता है? लोग सोचते हैं कौन झंझट में पड़े, टैक्स दो, आराम से बैंक अकाउंट में पैसा हो, जहां यूज करना वहां यूज करो। वाई? इट्स अ टैक्स इनकम, व्हाइट मनी है। तो इट इज इनडायरेक्टली कंपेलिंग द पीपल टू पे टैक्सेस एंड नॉट टू डू द टैक्स इवेजन। क्योंकि जब इजी टू यूज है, अभी आपने सुना होगा साहब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया है, पैन नंबर मैंडेटरी, मतलब इतना कर देंगे कि आप कर नहीं पाएंगे। मतलब पहले जो इतना इजीली लोग यूज कर लेते, दे आर नॉट, एंड धीरे धीरे सिस्टम स्ट्रिक्टनेस बढ़ाते जा रहे हैं। रोज देखते हैं कुछ कुछ चीजें गवर्नमेंट की तरफ आती रहती है, ये करना पड़ेगा ऐसा। पर्पस ये है कि आपको इतना मजबूर कर दे कि तुम ब्लैक यूज ही नहीं कर पाओ। जब यूज नहीं कर पाओ तो ब्लैक फिर रख के क्या करोगे? हर आदमी पैसा कमाता तो कहीं ना कहीं यूज, सही से मैं शानदार मकान बनाऊंगा, शानदार गाड़ी लूंगा, कुछ ले ही नहीं पा रहे तो पैसे को देख दे क्या, या तो पहले लंच डिनर में पैसे खाने पड़ेंगे। ऑप्शन ही नोट पैसे खाने की, चपाती के चलो आज एक बंडल नोट का खा लिया, ठीक है, ऑप्शन ही है, क्या करेगा बंदा? तो बंदा बोले इससे बेटर है 30% जो भी टैक्स बनता हो दो, एंड बाकी मेरा क्या बन गया, व्हाइट, एंड आराम से मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं। बिकॉज तो 100% ही बेकार हो गया ना, आप यूज ही नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर मैं ब्लैक को यहां पे व्हाइट में कन्वर्ट ही नहीं होने दूं, इतनी स्ट्रिक्टनेस हो जाए तो क्या होगा? लोग बोलेंगे क्राइम में इंडल्ज होना, जैसे वहां टैक्स इवेजन नहीं करेंगे, यहां क्या हो, क्राइम नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट क्या इंपैक्ट क्या होगा? क्राइम लेवल विल बी रिड्यूस, एंड जैसा अल्टीमेट देखने में हम बोलते हैं प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव दिस लॉ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। By why to prevent the money? To reduce the crimes, to reduce the crimes. Ultimate इसका impact इस पे आएगा, crime level will automatically come down. Black money को हम tainted money बोलते हैं। Tainted मतलब जिसमें धब्बे लगे, मतलब is earned in a wrongful manner. और white money also called untainted money. Tainted and untainted. अच्छा एक चीज बताओ, मनी लॉन्ड्रिंग जो लोग करते हैं, ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इस तरह क्राइम से पैसा जनरेट हुआ, फिर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रॉब्लम है, इज इट ओनली एन इंडियन प्रॉब्लम, इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम? इंटरनेशनल। अच्छा कई बार बोलते हैं ना कि साहब इंडिया में क्राइम बहुत है, यूएस में इंडिया से भी ज्यादा है, और बहुत हाई लेवल पे क्राइम्स होते हैं वहां पे।
हाँ वहां पर ये जो इंडिया में चिंदी चोर बहुत है, चिंदी चोर होता ना, कि मंदिर के बाहर से चप्पल ही चुरा ली, वहां ये चीज नहीं होती। वहां पे हाई लेवल की बातें होती है, और ऐसे बड़े लेवल पर क्राइम आप सोच नहीं सकते। तो ऐसा नहीं कि वहां क्राइम नहीं है, बहुत हाई लेवल पर क्राइम से। यहाँ के छोटे से कोई जेब चल रहे हैं मेट्रो में, किसी जेबी काट ली, पर्स निकाल लिया, तो यहाँ ये भी तो क्राइम ही है। तो यहाँ छोटे से लेके बड़े तक सारे लेवल के, वहां के छोटे छोटे बड़े लेवल बहुत होते हैं। करप्शन वहां भी है, ये मसला करप्शन नहीं है, लेकिन तो ग्राउंड लेवल में नहीं दिखेगा कि साहब ब्रिज बनाया 2 दिन में गिर गया, फ्लाई ओवर गिर गया, वो नहीं हुआ कभी। बड़े लेवल पे होता है, वहां भी करप्शन है, वहां भी ऐसा नहीं वहां पे देखने में, लेकिन वो और चीजों से क्या है उसको कवर अप कर देते हैं, सिस्टम इफेक्ट नहीं होता। यहाँ इंडिया में सिस्टम इफेक्ट हो जाता है, आम आदमी को परेशानी हो जाती है। अब इंटरनेशनली सब जगह ही आपकी क्राइम की प्रॉब्लम है, और जब क्राइम है तो वहां से इनकम जनरेट हो, तो लोग उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए एक्चुअली ये खाली नेशनल प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। सब जगह ही दिक्कत है कि साहब लोग आराम से आराम ह्यूज क्राइम्स करते हैं, उससे पैसा जनरेट होता है, पैसा जनरेट करके व्हाइट करने के यूज करना चाहते हैं। एंड इसलिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए नॉट ओनली आवर कंट्री इज टेकिंग द स्टेप, जैसे हमारे कंट्री में लॉ बना, उसी तरह मोस्ट ऑफ द गुड नेशंस जो वर्किंग अच्छे नेशंस हैं, ठीक है, हाँ अच्छे में पाकिस्तान का नाम नहीं आता, ठीक है, आप जानते हैं ना, बदनाम देश है, ठीक है। और कल आई डोंट नो अभी एग्जैक्टली मैंने आज न्यूज़पेपर नहीं देखा नहीं है कि कल ट्रम्प से आपको नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात रात को 1 बजे हुई इंडियन टाइम के हिसाब से, तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए। अगर ट्रम्प ने अगर हाथ मिला लिया इंडिया के साथ तो पाकिस्तान उड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूएस का थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको पाकिस्तान को, जिसकी वजह से बहुत कोई खुल के आपको पाकिस्तान के कुछ नहीं करता। तो एक बार यूएस अगेंस्ट हो जाए तो बोलता ना वर्ल्ड मैप से गायब हो जाए बोल, फिर लोग बोलेंगे दे यूज्ड टू बी नेशन कॉल्ड पाकिस्तान, तो ऐसे बुलाएगा, ठीक है। तो ये है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे बोलते हैं कल इधर नरेंद्र मोदी मिलने के, इधर पाकिस्तान में हलचल मची हुई है कि पता नहीं क्या डिसीजन हो जाए, वो लोग आपस में क्या एग्री कर लें, ठीक है। इट कैन बी वेरी डिजास्टर्स फॉर द पाकिस्तान। तो अपनी हरकतों से सब उल्टे सीधे काम करते हैं। एनीवे देखिए, हियर व्हाट आई वाज सेइंग दैट इज अ इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग इज अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो सभी कंट्रीज को इस पर काम करना पड़ेगा, तभी जाके द प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड। तो उसी तरीके से देखिए, यूनाइटेड नेशन का सबने नाम सुना है? इज इट ए इंटरनेशनल बॉडी है ना? यूनाइटेड नेशंस ने 1998 में एक डिसीजन लिया था कि साहब जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब जितने भी कंट्रीज, इंटरनेशनल में स्टेट का मतलब कंट्री होता है, जितने मेंबर स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब ऑल द कंट्री विच आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। इज द इंडिया ऑल्सो मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? यस, बिकॉज इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन आप जानते हैं नॉर्मली इंटरनेशनल मुद्दों को ही उठाता है। यूनाइटेड नेशन ने एक डिसीजन लिया था इन द ईयर 1998 कि ऑल द कंट्री विच आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन दे शुड मेक सम लॉ in their respective countries to deal with the problem of money laundering, so that black is not able to be converted into white, and as a result it will reduce the crime level. तो सभी कंट्रीज को अपने अपने कंट्रीज के अंदर लॉज बनाने चाहिए, लेजिस्लेशन बनाने चाहिए टू कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू कंट्रोल द कन्वर्जन ऑफ ब्लैक इनटू व्हाइट। हमारे यहाँ लॉ कब बना? 2000 देख रहे हैं, 98 में ये डिसीजन हुआ था। उसका इंपैक्ट इंडिया में आया, इंडिया ऑल्सो बीइंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, और इंडिया में हमारे यहाँ एक लॉ बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसी तरीके से वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े और ठीक ठाक जितने भी नेशंस हैं, सभी जगह इस तरह के लॉ, जो भी नाम रखे उन्होंने, ऐसे लॉज बनाए गए टू कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्री। अब ये कह सकते हैं कलेक्टिव एफर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, सारे नेशंस आपको, कोई इट्स नॉट अ नेशनल प्रॉब्लम, इट्स अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजें जो एक कंट्री की समस्या नहीं, टेररिज्म, बट टेररिज्म इज अ नेशनल प्रॉब्लम, इट्स अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इट्स अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इट्स एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। अभी कल अगर आपने स्पीच देखी हो, नरेंद्र मोदी जब इंडियंस जो यूएस में है उनसे जब उनकी मीटिंग्स हुई थी, कुछ स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात, एक लाइन बोली, बोले पहले इंडिया या और कंट्री है ना दूसरे देश को समझाते थे सर टेररिज्म क्या होता है, बोला अब हमें समझाने की जरूरत नहीं, टेररिस्ट ने खुद समझा दिया है। मतलब टेररिस्ट ने वो समझा दिया जो हम समझा नहीं पा रहे थे। इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले बड़े नेशन लाइक यूएस, यूके, जब कभी इंडिया ये बातें उठाता था कि साहब पाकिस्तान ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है,
तो पता क्या होता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम, हमें मतलब नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप सपोर्ट करें गलत को। अच्छा, वही पाकिस्तान बोलते ना, आज बोलते हैं, आज फसाद बोलते हैं, टेररिज्म का कहीं ना कहीं हर चीज का बेस पाकिस्तान से लिंक होता है। कितने टेररिस्ट स्कैम्स चल रहे हैं वहां पे। अच्छा, क्या लंदन में बॉम्बिंग हुई थी, कि यूएस में ट्विन टावर्स पे आपको बॉम्ब गिरे थे, तो अब यही वो बोल रहे थे कि साहब टेररिस्ट ने खुद बता दिया कि टेररिज्म क्या होता है। जब इनके ऊपर भी हुआ अटैक तो इनको समझ आ गया इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ओनली वन कंट्री और टू कंट्रीज, इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो टेररिस्ट को कोई मतलब, उनको काम ही खाली डिस्ट्रक्शन फैलाना है। तो उसके बाद से यूएस यूके जब बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। आज यूएस का वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है क्या, यूके का वीजा आसानी में, उसके रीजन से ही है कि जब से टेररिस्ट प्रॉब्लम बढ़ी उन कंट्रीज में, तब से उन्होंने वीजा नॉर्म्स भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए कि भाई हमारे कंट्री में गलत बंदा ना आ जाए। दे हैव मेड वेरी, क्योंकि कई कंट्री बहुत इजीली चले जाते, वीजा बहुत आसानी मिलती, यूएस यूके इतना आसानी से नहीं मिलता। रीजन यही है कि जब से उनके यहाँ प्रॉब्लम्स हुई है, दे हैव चेंज द नॉर्म्स, यू विल नॉट अलाउ इजीली, बिकॉज गलत आदमी आएगा वहां जाके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्यों कर रहे हैं, रीजन बीइंग अल्टीमेटली नाउ दे हाउस। तो ये बोल रहे हैं कि साहब प्रॉब्लम हमारी खाली नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम। पेरिस में क्या हुआ था, अब देख रहे हैं जगह जगह हो रहा है आपको। इट मीन्स वो टेररिस्ट सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो नाउ वर्ल्ड हैज, all the peace loving nation has to come together and they have to make joint efforts. Exactly, money laundering में भी सेम चीज है कि भाई एक कंट्री करने से नहीं होगा, rather all the nations have to come together. उसी कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशन डिसीजन लिया था एंड इंडिया ने उस कॉन्टेक्स्ट में लॉ बनाया, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. इज दैट क्लियर? नाउ देखिए, सो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस लॉ। कि साहब ये लॉ है और अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं थ्रू दिस लॉ, दैट आई हैव जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन. Now I come to the first main provision of this law. See, I take up the definition and meaning of the term money laundering. देखिए, it says that whosoever one acquires, owns, purchases or transfer any proceeds of crime, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं POC. Whosoever acquires, owns, purchases or transfers any proceeds of crime or whosoever knowingly enters into any transaction relating to proceeds of crime, POC, that is the proceeds of crime. Whosoever knowingly enters into any transaction related to proceeds of crime, whosoever conceals, conceal का मतलब क्या होता है, छुपाना, हाइड करना. Whosoever conceals or aids in the, aids का मतलब क्या होता है, helps. एक तो आप खुद कंसील कर रहे हैं या आप दूसरों को मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, किस चीज में, इन द कंसीलमेंट, इन द कंसीलमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. Whosoever owns, purchases or transfers any proceeds of crime or whosoever knowingly enters into any transaction relating to the proceeds of crime or whosoever conceals or aids in the concealment of proceeds of crime. अगर इन तीनों में कहीं भी कोई बंदा फॉल करता है, 1 2 3, it means that person is committing, he commits what,
द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. विच ऑफेंस? ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग प्रोहिबिटेड है, और अगर आप ये चीजें करते हैं तो ये माना जाएगा आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है. इट मीन और मनी लॉन्ड्रिंग किया है, दैट इज नॉट अलाउड. इट मीन्स इट्स एन ऑफेंस. इट्स एन ऑफेंस. ये माना जाएगा दैट पर्सन हैज कमिटेड व्हाट? विच ऑफेंस? द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग. हूसएवर एक्वायर्स. अभी मैं सारा चीज अप्लाई करके बताऊंगा इन अ गिवन सिचुएशन. कोई खाली लैंग्वेज पढ़ लेते हैं बट पता नहीं चलता हमें एग्जैक्टली क्या बात है. कोई भी अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को एक्वायर करता है, ओन करता है कि साहब ये मेरी चीज है, पजेस या किसी और को ट्रांसफर करता है, अगेन ही इज दैट पर्सन गिल्टी ऑफ विच ऑफेंस? ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप कोई ट्रांजेक्शन करें जो किससे रिलेटेड है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. और आपको पता है, यहां पे अंडरलाइन द वर्ड नोइंगली. आपको ये बात पता है कि साहब मैं जो ट्रांजेक्शन कर रहा हूं जिस चीज से रिलेटेड है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, फिर भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. बोलते हैं ना, गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है. जब पता है कि सामने वाले के पास जो ट्रांजेक्शन मेरे साथ कर रहा है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, फिर भी आप कर रहे हैं, नोइंगली वर्ड लिखा हुआ है, यू आर ऑल्सो गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. एंड हूसोएवर कंसील्स, हाइड्स और हेल्प्स द अदर पीपल इन द कंसीलमेंट ऑफ. आपका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, आप उसको छुपा रहे हैं, आप गलत हैं. आपका नहीं है, किसी और का, आप उसको गाइड कर रहे हैं कि कैसे छुपाना है. अच्छा, कई बार प्रोफेशनल्स गलत लोगों को आपको गाइड करते हैं कैसे गलत काम करने. ये सुनो, प्रोफेशनल्स मदद करते हैं. तो जो प्रोफेशनल ऐसा करेगा क्या हुआ? दैट पर्सन ही इज एडिंग, ही इज हेल्पिंग द अदर पर्सन, ही इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. इट्स अ वेरी सीरियस लॉ. पेनल्टीज आर रियली वेरी सीरियस. अभी वो पेनल्टीज वगैरह आगे आएंगी. नाउ एक चीज देखिए, तीनों सेंटेंस के अंदर और तीनों पॉइंट्स के अंदर एक बात कॉमन है. क्या? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. Whosoever acquires, owns, purchases, transfer what? Proceeds of crime. Whosoever knowingly enters into any transaction related to proceeds of crime. And whosoever conceals or aids in the concealment of what? Proceeds of crime. So don't you think we need to understand the term proceeds of crime? कि साहब proceeds of crime क्या होता है? अच्छा, क्या proceeds of crime का जो meaning है, क्या will it help in understanding the meaning of the term money laundering? ये जो आपके साथ, क्योंकि मनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जो मीनिंग निकल के आएगा, क्या उसको हम यहाँ फिट करेंगे तीनों जगह? ये सुनो, दैट्स व्हाई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी हैव रिटन हियर, व्हाट आई हैव रिटन हियर, टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. तो वहां चलते हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है, एंड उसको पहले समझने के बाद यहाँ अप्लाई करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस वन इन अ बेटर वे. तो मैं पहले वो बताता हूँ, फिर दोनों को रिलेट कर देंगे. इज दैट क्लियर? देखिए, proceeds of crime. It is defined like this. It says proceed of crime means any property which is derived or obtained derived or obtained directly or indirectly. D is the directly or I is the indirectly. By any person derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of some criminal activity. As a result of some criminal activity relating to scheduled offense. As a result of criminal activity relating to scheduled offense, underline this scheduled offense, or the value of such property. Or the value of such property. As a result of criminal activity relating to scheduled offense or the value of such property. यहां अगर ध्यान से देखो
स्टार्टिंग में हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी को हम प्रोसेस, कौन सी प्रॉपर्टी विच इज डिराइव्ड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ सम क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, कि आपने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की है शेड्यूल ऑफेंस रिलेटेड, उससे जो प्रॉपर्टी आपको मिली है डायरेक्टली, वो क्या है, प्रोसीड क्राइम। या उस प्रॉपर्टी को अगर आप बेच दें और आपको कैश मिल जाए तो वो वैल्यू है उसकी, क्या वो भी क्या होगा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो शुरू में लिखा प्रॉपर्टी, लास्ट में लिखा और द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। इट मीन्स इफ यू लिक्विडेट दैट प्रॉपर्टी एंड गेट कैश, व्हाट विल हैपन, दैट वैल्यू इज आल्सो द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। क्योंकि आप फॉर्म चेंज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि साहब आपने एसेट को लिक्विडेट करके कैश बना दिया, इसका मतलब प्रोसीजर ऑफ क्राइम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए वो भी लिखा हुआ है। तो क्या होता है, लॉ में एक एक चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने एक चीज नहीं मेंशन की, लोग एक चीज समझते हैं लूप होल, उसमें लूप होल हो जाएगा, लोग क्या करेंगे उस लूप होल का फिर मिसयूज करेंगे। इंडियंस तो वैसे ही मास्टर है इन एक्सप्लॉइटिंग द मिस होल, जितने लूप होल रह जाएंगे वो एक्सप्लॉइट करने में मास्टर होते हैं। इसलिए वन हैज टू वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राफ्टिंग द लॉ। लॉ बनाया जाता है तो थोड़ा ध्यान से कि एक एक चीज कवर हो, कोई छूट ना जाए, क्योंकि अगर कुछ छूट गया तो पता क्या होता है, एज ए स्टूडेंट हमें नहीं पता लगता, कई बार एग्जाम में एक वर्ड कम लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल ये सब लॉ प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं ना। तो अगर मान लिया वहां पे कुछ छूट गया तो लोगों को एक तरीका मिल जाएगा हाउ टू एक्सप्लॉइट दैट लूप होल्स। इसलिए उस पॉइंट वन हैज टू वेरी क्लियर, लॉ बनाते समय बहुत, मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूँ, मेरा अपना मानना है कि इस लॉ जो बना होता है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। जो बनाते हैं, थिंक अबाउट दोज पीपल हु ड्राफ्ट द लॉज, मतलब उनकी बनाई हुई चीज को समझने में इतना जोर लगता है, उन्होंने बनाया है। तो मेरे टफेस्ट जॉब इज टू ड्राफ्ट द गुड लॉ। गुड वर्ड इज लगाऊंगे दैट लॉट ऑफ बैड लॉज आल्सो ड्राफ्टेड आर नॉट गुड, गलत ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग अधूरी है, ठीक है। इफ सम लॉ हैज बीन ड्राफ्टेड वेरी गुड, सब यूनिक आर्ट, सब लोग नहीं कर सकते। तो कितना वो सोचता होगा बंदे, कितनी समझ होगी साहब, ये भी कवर करना है, ये भी, ये छूट जाएगा तो क्या होगा, तो उसकी लैंग्वेज को उस हिसाब से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, वर्ल्ड में लॉ ड्राफ्टिंग में कहते हैं ब्रिटिशर्स को बेस्ट माना जाता है। तो ब्रिटिशर्स को माना जाता है। इंडिया में क्या होता है कि आपको ड्राफ्टिंग यहां भी हो रही है लेकिन उतनी अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं होती, लेकिन वो ब्रिटिशर्स आर कंसिडर्ड द बेस्ट ड्राफ्ट्समैन। एक लॉ है इंडियन पीनल कोड, आईपीसी 1860, 1860। आज हम 2017 में खड़े हैं, 150 साल से ज्यादा हो गए, आज भी वो लॉ हमारे सिस्टम में चल रहा है। दैट लॉ वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकुले, ही वाज द ब्रिटिशर, जब उनका ब्रिटिशर का इंडिया में रूल था, उन्होंने बनाया था। लॉर्ड मैकुले वाज द मैन, MACAULAY, लॉर्ड मैकुले, MACAULAY, लॉर्ड मैकुले, ही वाज द मैन हु ड्राफ्टेड दैट इंडियन पीनल कोड। आज भी रेलेवेंट है। तो सोच के देखिए, बंदे की सोच, आज भी लॉ चल रहा है तो उसने सोच 150 साल आगे भी सोच सकता था कि कैसा समाज बना। लॉ किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो आज भी वो सोसाइटी में रेलेवेंट है। इट मीन दैट पर्सन वाज ए विजनरी। बिजनेस मतलब जो आज नहीं, आगे का बहुत आगे तक सोच सकता है, आगे समाज कैसा होगा। बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज नहीं है। 150 साल तो बहुत, पता नहीं कितनी जनरेशन निकल जाती है। एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंदर एक टर्म और आ गया, शेड्यूल्ड ऑफेंस आ गया। पहले हमने डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग समझा, उसके अंदर एक टर्म आया था प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जब समझने की कोशिश करें तो उसके अंदर एक टर्म क्या आ गया आपका, दैट इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो साहब ये शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है? शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब इस एक्ट के अंदर लास्ट में एक शेड्यूल दे रखा है, और क्योंकि यहाँ एक ही शेड्यूल है इसलिए नंबरिंग नहीं है। अच्छा, कोई भी चीज जब एक ही होता है उसकी नंबरिंग होता है कि नो, अगर एक से ज्यादा मतलब शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ऐसे जैसे कंपनीज एक्ट में बताया था दे हैव 7 शेड्यूल्स। तो हियर वी हैव ओनली 1 शेड्यूल इन द लास्ट ऑफ दिस एक्ट एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो नंबरिंग, तो ओनली वी से शेड्यूल। इस एक्ट के लास्ट में जो शेड्यूल है उसमें कुछ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दे रखी, क्या दे रखी है, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस। एंड उन ऑफेंसेस को हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड ऑफेंस। क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड ऑफेंस। लेकिन शेड्यूल एक ही है, उस शेड्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। क्या पार्ट में, 2 पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, शेड्यूल ऑफेंस मीन्स ऑफेंसेस व्हिच आर स्पेसिफाइड वेयर इन द शेड्यूल टू दिस एक्ट। देयर इज ओनली 1 शेड्यूल। इस शेड्यूल के 2 हिस्से हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। कुछ ऑफेंसेस पार्ट ए में दे रखे हैं और कुछ ऑफेंसेस पार्ट बी में दे रखे हैं।
नेक्स्ट सवाल दिमाग में आया कि साहब ऐसा क्यों किया हुआ, व्हाई दैट काइंड ऑफ डिवीजन इज देयर। सिर्फ पार्ट ए में मोर सीरियस ऑफेंसेस रखे, जो ज्यादा सीरियस ऑफेंस है वो पार्ट ए में दे रखे, एंड कंपैरेटिवली रिलेटिवली पार्ट बी में लेस सीरियस ऑफेंसेस दे रखे। Part A contains the list of more serious offenses and Part B contains the list of less serious offenses. Comparatively, relatively आप more serious and less serious. Clear? जैसे Part A के अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं, waging a war against the government. This is one example of the offense given in Part A of the schedule. Waging a war against the government. समझते हो? Waging a war का मतलब समझते हो? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कंट्री के अंदर अनरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता है। अनरेस्ट में तो पूरी सोसाइटी में लड़ाई झगड़े, सिविल वॉर समझते हो। एक होता है एक्सटर्नल की दूसरे कंट्री ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, एक वो वॉर होता है। एक सिविल वॉर का मतलब विद इन द कंट्री वॉर हो जाए, जो तो ना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे किसी और जो लड़ाइयाँ हो गई, कॉम्युनल राइट्स हो गए, इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, वो सिविल वॉर। क्या कई बार ऐसा होता है कोई कंट्री दूसरे कंट्री में ये प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है? सुना होगा ऐसा होता है। सुना क्या, हमारे तो बगल में पड़ोसी ऐसा है। अच्छा ये बताओ, बॉम्बे में ब्लास्ट हुए थे, जो ताज होटल वाला जो केस था, किसने कराए थे? पाकिस्तान। ठीक है, बनारस में बॉम्ब फूटे थे जो हनुमान मंदिर में, किसने कराए थे? पाकिस्तान। तो ऐसे तो कितने केसेस हैं। तो दैट इज क्रिएटिंग अनरेस्ट, मतलब वेजिंग वॉर, मतलब देश में देश की जो सरकार है उसके अगेंस्ट वॉर हो जाए। कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है? देखना आर्मी के ऊपर पथराव कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली कहीं ना इसके फंडिंग कहीं से पाकिस्तान से आ रही है। वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पैसा वहां, वो ये बोलते हैं यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करो, यहाँ पे दिक्कतें पैदा करो। तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस है कि आप पूरे कंट्री को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वहां की सरकार को गिराना चाहते हैं, सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको वेजिंग द वॉर। इट्स वेरी सीरियस ऑफेंस। नार्कोटिक्स सुना हुआ, ड्रग्स एंड ऑल दैट, अगेन वेरी, ये सब पार्ट ए में दे रखे। पार्ट बी में कंपैरेटिवली लेस सीरियस, फॉर एग्जांपल मर्डर। ठीक है, कई बच्चों से मर्डर लेस सीरियस है बेटा। एक कम टर्म समझ दो, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली। मर्डर इज, देखिए किसी का मर्डर वो बहुत सीरियस चीज है, लेकिन हमें यहां पे इन टर्म्स ऑफ मनी देखना है कि साहब मनी की बात क्या है, कि हमें अल्टीमेटली क्राइम का नेचर क्या है। मर्डर, अगर इंडियन पीनल कोड जो मैं एग्जांपल दिया था, इंडियन पीनल कोड के हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ऑफेंस, बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इज नॉट, हर लॉ का अपना अपना एक दायरा है, अपना अपना एक तरीका है। तो यहाँ पे पार्ट बी में जैसे आप वाइल्ड लाइफ की स्मगलिंग करते हैं, बताते हैं जानवरों की स्मगलिंग करते हैं, आपको व्हाट वी कॉल हियर मर्डर्स, डकॉयटी, इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं वो यहाँ पे दे रखे इन पार्ट बी। और एक बात और, पार्ट बी के अंदर कंडीशन है, प्रोवाइडेड द अमाउंट इन्वॉल्व इन दैट ऑफेंस is greater than equal to 30 lakhs. This is also very important. कि उस ऑफेंस के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है 30 लाख या उससे ज्यादा, तब जाके वो पार्ट बी में कवर होगा। तो खाली नेचर ऑफ द ऑफेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि अमाउंट उसमें कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, 30 lakhs और मोर। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पार्ट ए में ऐसी कोई अमाउंट नहीं, क्योंकि पार्ट ए में इतने सीरियस ऑफेंस दे रहे उसके अंदर। अच्छा बताइए, एक कंट्री की सरकार दूसरे कंट्री में वॉर छिड़वाना चाहती है कि वहां प्रॉब्लम हो जाए, क्या आपको लगता है वहां पे उस कंट्री की सरकार कितने पैसे खर्च करती है ये सब गलत काम करवाने के लिए? इवन यू कैन नॉट इमेजिन, इट मे बी 500 करोड़, इट मे बी 1000 करोड़। तो वहां 30-50 लाख क्या बोले, मतलब इंप्लाइड है कि वहां ऑफेंस ही आपने ऐसे मेंशन कर रखे हैं जहां अमाउंट विल बी वेरी ह्यूज, तो बोलने की जरूरत नहीं, इंप्लाइड है। ठीक है, लेकिन पार्ट बी में ऑफेंसेस होते रखे, उसमें अमाउंट बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी। हम पार्ट बी में उसे कब कवर करेंगे? When it covered when the amount involved is 30 lakhs or more. मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लिया किसी कहने से किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर इज कवर्ड इन पार्ट बी, कवर्ड है, पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल कवर्ड है। अच्छा, उस मर्डर करने के बदले में बंदे को 10 लाख रुपए मिले। उसने बोले एग्री किया कि साहब मैं 10 लाख रुपए आप मुझे देंगे, आई विल डू द कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसने कर दिया, 10 लाख रुपए मिल गए। मुझे बताइए क्या वो पार्ट बी में कवर्ड हुआ? क्यों नहीं कवर्ड हुआ?
बिकॉज अमाउंट इन्वॉल्व इज ओनली 10 lakhs एंड कंडीशन इट शुड बी 30 lakhs और मोर। तो वो शेड्यूल्ड पार्ट ए में तो है ही नहीं, पार्ट बी में है सब्जेक्ट टू कंडीशन 30 lakhs और मोर, लेकिन 10 lakhs था। क्या पार्ट बी में कवर हुआ? नहीं, कहीं नहीं। क्या वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है? नहीं है। कब कवर होगा? पार्ट बी में। अमाउंट भी तो है साथ में, इसका वो शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। जब शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है तो उसको जो पैसा मिला 10 लाख रुपए, क्या वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है? क्या 10 लाख रुपए जो उसे मिले, क्या वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है? भाई साहब सब कुछ सामने लिखा हुआ है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की क्या, देखो भावनाओं में नहीं बहना है सब। मुझे तो लग रहा है भाई आपका दिल क्या कह रहा है उसको बोल जाओ, दिमाग क्या कहता है उसको अप्लाई करना है। दिल और दिमाग में फर्क होता है ना। आप देखिए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन की आपके सामने लिखी हुई है, लिखी हुई है। क्योंकि शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब ऑफेंसिव इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। शेड्यूल दो हिस्से में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में सीरियस दे रखे हैं, उसमें कंपेरेटिवली लेस सीरियस दे रखे पार्ट में, लेकिन सब्जेक्ट कंडीशन अमाउंट इन्वॉल्व 30 lakhs और मोर। मैंने 10 lakhs एग्जांपल लिया मर्डर का। मर्डर ए में तो है नहीं, पार्ट ए में। कहां है? पार्ट बी में। लेकिन अमाउंट 10 लाख रुपए है तो कवर नहीं हुआ। हमला मीन्स एनी प्रॉपर्टी और डिराइव्ड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनलिटी। क्रिमिनलिटी कौन सी? रिलेटिव टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। इज द मर्डर वेयर द अमाउंट इन्वॉल्व 10 lakhs, इज इट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस? खाली मर्डर मत पकड़ो, मर्डर का कंडीशन है, यही तो पकड़ना है। पार्ट बी में कब कवर होगा वो ऑफेंस है? जब आपको अमाउंट कितना इन्वॉल्व 30 lakhs और मोर। इसका अगर 10 lakhs था, इसका था वो पार्ट ए में भी कवर्ड नहीं और पार्ट बी में भी कवर्ड नहीं है। तो मुझे बताइए इससे आपको जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको जो 10 लाख रुपए मिले, क्या वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है? नहीं, वो प्रोसीड क्राइम नहीं है। जब वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो क्या आपको उस बंदे ने, मान लिया जिसने ऑफेंस किया, मान लिया एक्स है, मान लिया एक्स ने आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की, 10 लाख रुपए मिले, तो क्या एक्स ने मनी लॉन्ड्रिंग की? मनी लॉन्ड्रिंग क्या डेफिनेशन थी? क्या डेफिनेशन थी? हूसएवर एक्वायर, नहीं डेफिनेशन फिर वही बात अभी, हूसएवर एक्वायर्स ओन्स पजेस, यही पढ़ाया था। ट्रांस व्हाट? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। रिवर्स चलते हैं, क्या वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है? नहीं। हूसएवर नोइंगली एंटर्स इन ट्राइम, प्रोसीड क्राइम है? नहीं। एंड हूसएवर कहीं नहीं है, इसका तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो क्या उस एक्स को जिसको 10 लाख रुपए मिले फॉर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, क्या इस एक्ट में कवर होगा? क्या किसी भी एक्ट में कवर नहीं होगा? होगा। अब आप सोच रहे हो मैं गलत तरीके से सोच रहा था। होता क्या है मैं बताता हूं, ये करेक्ट करना हमारा काम है, इसी के लिए आप हमारे पास आए हैं। क्या होता है, बच्चा ये नहीं सोचता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं। फिर वही बात सुबह बोला था, डेवलप द राइट वे ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। होता क्या है, वो ये देखता है यार मर्डर किया, ऑफेंस तो है, एकदम है, किसने बोला एकदम ऑफेंस है, बट डज इट मीन इट्स एन ऑफेंस अंडर एवरी लॉ? नो, ये बात समझने की है कि साहब आप यहां पे ऑफेंडर नहीं है, इस एक्ट के अंदर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन इंडियन पीनल कोड दैट इज अनदर लॉ विच से मर्डर इज वेरी सीरियस ऑफेंस, एंड वहां पे आपको सेक्शन 300 के अंदर मर्डर को डिफाइन किया, सेक्शन 302 के अंदर उसकी पेनल्टी दे रखी है, वो लगेगी, एकदम लगेगी। लेकिन इस क्वेश्चन जब ये अच्छा मान लिया एग्जाम के अंदर, मान लिया से जो आपको गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट है जो इस एक्ट को चला रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, कंपनी लॉ में एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? एमसीए कर रहा है, वैसे इसका भी डिपार्टमेंट होगा। जो भी इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, क्या उस एक्स को जिसने मर्डर किया 10 लाख रुपए लेके, क्या उसके इस एक्ट के अंदर केस डाल सकते हैं? कोर्ट लेगा ही नहीं, कोर्ट बोलेगा इट्स नॉट एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। लेकिन अगर इंडियन पीनल कोड के हिसाब से डालते तो क्या लेगा कोर्ट? यस, वाई? बिकॉज वहां का समझना है। ऐसे होता क्या, हम ये सब चीज एनालाइज टेक्निकली नहीं करते, बट मुझे तो ये ऑफेंस लग रहा है। भाई साहब ठीक है, ऑफेंस है, किसी ने गलत किया पनिश होगा, लेकिन हर लॉ में पनिश नहीं होगा। ऐसे आपके साथ गलत हुआ, आपको रेमेडी जरूर मिलेगी, लेकिन हर लॉ में नहीं मिलेगी। उसके लिए यू हैव टू अप्लाई अंडर द राइट लॉ। अगर आप गलत लॉ में अप्लाई करें तो हो सकता है आपके अगेंस्ट गलत हुआ है, यू आर एग्रीड पार्टी, यू हैव सफर्ड सम लॉस, बट स्टिल यू विल नॉट गेट द रेमेडी। व्हाई? यू आर अप्लाइंग अंडर द रॉन्ग लॉ। जैसे एग्जाम्पल में ये सब समझने के लिए, यही एग्जाम में भी पूछा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट विल दिस पर्सन बी पनिश्ड, बच्चा कुछ नहीं सोचता, वो एक्ट क्या कहता है, मुझे तो गलत लग रहा है। भाई साहब ये क्या है, आप दिल से बोल रहे हैं, मुझे तो गलत लग रहा है। फिर क्वेश्चन ही अगर ऐसे होता तो फिर खाली भावना में, वो तो क्या वहां होता ना, जैसे बाबा लोग होते ना, वो भावना में सब कुछ समझाते हैं। बाबा लोग होते ना, वो भावना ही खाली बात करते हैं, वो कोई मतलब नहीं है क्या चाहिए, बस भावना में भावना, फिर क्या भावना का मिसयूज होता है, लोगों को पागल बनाते हैं।
तो आपको ऐसे नहीं समझना, आपको समझना लॉ क्या कहता है, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा दिल क्या सोच रहा है, बोलिए लॉ क्या कहता है। सारी बात ऐसे होती है। एग्जाम में क्वेश्चन है कि साहब खाली एग्जाम में प्रैक्टिकली बता रहा हूं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। इसी पेपर के अंदर वन ऑफ द इकोनॉमिक लॉज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी बताता ना, कंज्यूमर से रिलेटेड है। उसके अंदर एक पॉइंट है उस लॉ के अंदर कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है, अगर कोई सेलर उससे ज्यादा रेट चार्ज कर लेता है, यू कैन अप्लाई फॉर द रेमेडी अंडर दैट लॉ। गलत है, अलाउड नहीं है। एक्चुअल केस बताता हूं मैं आपको। एक बंदे ने क्या किया, उसे रेस्टोरेंट में गया, कोल्ड ड्रिंक परचेज की। पुरानी बात है, कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स होती हैं, एक तो होता है ना आपको फाउंटेन पेप्सी ग्लास में लाके दे दिया तो फिर अलग बात है, बट बोतल जब सामने रख दी, बोतल के ऊपर रेट होता है, उससे ज्यादा कोल्ड आपको रेस्टोरेंट ने चार्ज कर दिया। उस बंदे ने रेमेडी के लिए अप्लाई किया। अच्छा, रेमेडी मिल सकती है, एकदम मिल सकती है। बिट दैट पर्सन अप्लाइड अंडर एक लॉ उस समय हुआ करता था, अब उसकी जगह नया लॉ आ गया, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट। उस समय जब का केस है, अब उसकी जगह लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आ गया, वो भी आपके इसी पेपर सिलेबस में। उसने उस लॉ के अंदर अप्लाई कर दिया फॉर रेमेडी। कोर्ट की वर्डिंग थी इस केस में कि साहब आपने जिस लॉ में अप्लाई किया है, नो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उस समय एक्ट है स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, रेगुलेट्स द प्राइस। तो आपने इस एक्ट के अंदर अप्लाई किया, तो मुझे किस सेक्शन के प्रोविजन के हिसाब से मैं आपको रेमेडी दूं? मेरे हिसाब से इस लॉ में जो आपने अप्लाई किया, इस लॉ में तो देखा जाए उस लॉ के हिसाब से उसने कुछ गलती नहीं किया जिसने प्राइस ज्यादा चार्ज की, लेकिन वही बंदा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अप्लाई करता कि रेमेडी मिल जाती। ये सुनो, इट मीन गड़बड़ क्या हो रही है कि आप गलत लॉ में अप्लाई। एग्जैक्टली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस, और आप क्या करते हैं, ये सब कुछ नहीं सोचते। मेरे को ऐसा लग रहा है, यही हम मार खा जाते हैं। मेरे को क्या लग रहा है, लॉ क्या कहता है ये सोचिए। अभी मैंने कहा क्या ये प्रोसीजर ऑफ क्राइम है, बच्चों ने हाँ सर। प्रोसीजर ऑफ क्राइम की डेफिनेशन क्या है भाई, आपके सामने रखी तो हाँ लगा, नहीं प्रोसीजर ऑफ क्राइम आ रहा है विच इज अराइजिंग आउट ऑफ वेयर, फ्रॉम वेयर, द शेड्यूल्ड ऑफेंस। लेकिन वो तो शेड्यूल्ड ऑफेंस आ ही नहीं रहा, कि अमाउंट क्या है 10 लाख रुपए। जब शेड्यूल्ड ऑफेंस रिलेट ही नहीं हो रहा, इसका तो प्रोसीजर ऑफ क्राइम नहीं। जब प्रोसीजर ऑफ क्राइम नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं है। कैसे समझ, लेकिन ये नहीं कि यहां बच गए तो हर जगह बच जाए। गलत है तो कहीं ना कहीं पनिश, इंडियन पिनल कोड में बना पनिशमेंट होगी। मर्डर इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, इज दैट क्लियर? तो ऐसे समझना, इसको बोलते टेक्निकलिटीज, टेक्निकलिटीज से समझना है, ठीक है। तुक्के नहीं मारने हैं मुझे। अच्छा, हमेशा कोई क्वेश्चन पूछे, टेक अ पॉज, थिंक व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर दैट विच हैज बीन आस्क्ड। जो चीज मेरे से पूछा जा रहा है, चाहे कोई ओरली पूछे, एग्जाम में पूछे, कि जो चीज मेरे इंटरव्यूज वगैरह में जाएंगे, आपसे ओरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां पे पहले एक मिनट पॉज दीजिए, सोचिए कि साहब जो चीज मेरे से पूछा जा रहा है उसके बारे में लॉ में क्या प्रोविजन है, फिर उसको सोच के समझ के फिर जवाब दीजिए। होता क्या, कोई मतलब नहीं है क्या कहता है। अच्छा, मान लिया मैंने एक टर्म डिफाइन किया ए, आइडलेस आई हैव डिफाइंड सम टर्म ए इन सम लॉ, फिर मैंने पूछा क्या ये एक चीज ए है, क्या तरीका उसको डिसाइड करने के, साहब ए है कि नहीं। उस चीज जो मैंने पूछा है उसको ए की डेफिनेशन फिट करके देखूं, फिट अगर है तो क्या है, ए है, नहीं फिट रहा तो नहीं है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अननेसेसरी हम गलत तरीके से सोचेंगे तो सारे उल्टे सीधे आंसर आते हैं। दिस इज राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कितने केस बताए आपको, हैरान हो जाएंगे आप सुन के। क्या होता है, एक बंदा है, उसका कुछ गलत हुआ, उसने क्या किया, रेमेडी के लिए कोर्ट में अप्लाई करना था। नॉर्मली लोग कोर्ट में अप्लाई कैसे, लॉयर से तो करते हैं। अब लॉयर को उसने अप्रोच किया, लॉयर ने क्या किया, उसका केस किसी ऐसे एक्ट के अंदर डाल दिया जिस एक्ट में उसको रेमेडी नहीं है। आज अभी मैं जो एग्जांपल दे, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स, वो एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, वहां भी वो किसी लॉयर के थ्रू गया हुआ। तो गलती क्लाइंट की है, लॉयर की है? अगर क्लाइंट को सब कुछ पता हो तो लॉयर कैसे एंगेज क्यों करता वो? इसका इससे एक बात और पता है, लॉयर्स हमारे कितने कॉम्पिटेंट है। ये मतलब है कि हर बंदे जिसने एलएलबी कर रखी है वो लॉ का ज्ञानवान हो गया है, ठीक है। दिल्ली के बगल में एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां पे से भी लोग लॉ, और मैक्सिमम दिल्ली वाले वहीं से करके आते हैं। तो कितना लॉ को उनका अंडरस्टैंडिंग होती है, आई अंडरस्टैंड। कुछ नहीं पता होता, और पता है कितने लोग केस हारते इसलिए कि लॉयर इनकॉम्पिटेंट है, उसको रेमेडी मिल जाती है क्योंकि गलत लॉ के अंदर अप्लाई कर दिया। अब क्या होता है, आम आदमी को कुछ भी नहीं पता होता। पता लॉयर क्या समझा देगा, हमारा केस थोड़ा वीक था, एविडेंसेस नहीं था। अब आम आदमी को कुछ समझ नहीं आता तो उसको बेवकूफ बना रहा है, फीस पूरी चार्ज कर लेगा। बहुत लोग केस इसलिए भी हारते हैं बिकॉज द प्रोफेशनल हु इज हैंडलिंग इट इज नॉट कॉम्पिटेंट। अच्छा, कितने पेशेंट दे लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द डॉक्टर? यस और नो। खाली एक जगह थोड़ी, हर फील्ड में। मैं क्लास में बोलता रहता था, गलती तुम्हारी, तुम्हारे टीचर ने मिसगाइड किया, गलत बताया, उसकी गलती है, वो भी तो गलत है। प्रॉब्लम एक्चुअली सिस्टम है कि मिसगाइडेंस बहुत ज्यादा है।
इनकॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा, लोग अपने काम में बोलते हैं सही नहीं है। अगर अपने काम में पक्के नहीं है तो क्या वो गलत सलत चीजें करते हैं, गलत करते हैं, इसका इंपैक्ट दूसरों पे आता है ना। अच्छा लॉयर नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है तो क्या क्लाइंट पे इंपैक्ट आ रहा है, अच्छा डॉक्टर नहीं है पेशेंट पे आ रहा है, अच्छा टीचर नहीं है स्टूडेंट्स पे आ रहा है, सब जगह इंपैक्ट आ रहा है। तो इसलिए क्लास में क्या होता है, बिकम गुड। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, मैं अच्छे ढंग से अपना काम नहीं जानता, जो भी मैं काम कर रहा हूं, क्या एक तरह देखा जाए औरों के साथ मैं इनजस्टिस कर रहा हूं? तो क्यों अपने हाथ से पाप करें? और हर आदमी दूसरे जुड़ा हुआ है, ये सुनो तो सोचिए, देखो अगर हम इनकॉम्पिटेंट होते हैं, इसका इंपैक्ट हम सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए क्लास में मैं हमेशा इस को प्रमोट करता हूं, बिकम गुड। जो काम करें अच्छे से करें, जो भी काम करें, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन उसको अच्छे से निभाना है। नहीं सोसाइटी में अल्टीमेटली हमारे हाथ से गलत काम होते हैं। हर आदमी मुंह उठा के मैं ये कर लूंगा। मैं अभी ब्रेक में मैं एक बंदे को इतना डांट रहा था, वो गाड़ी की इंश्योरेंस की पॉलिसी ड्यू है, चेक ले गए, 10-10 दिन तक कोई खोज खबर नहीं है। मैं कहा तुम लोग नौकरी कौन दे देता है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई काम मतलब खाली मतलब क्या है, एक बार काम निकल गया, बाकी कोई मतलब नहीं, चेक मिल गया, पेमेंट मिल गई, मस्त हो जाओ। एक कंसेप्ट आफ्टर सेल सर्विस। अच्छा अगर आपने क्लाइंट को आफ्टर सेल अच्छी देते हैं, क्या वो क्लाइंट बार बार आपसे काम कराएगा? समझते नहीं लोग। एक बार बोलते ना, वो एक मुर्गी रोज अंडा देती है, बोला मुर्गी की गर्दन काट लो, पूरे पेट से सारे अंडे निकालो एक बार में। मोस्टली लोग की अप्रोच क्या होती है, एक बार में पता नहीं क्या कमा लें। बट गिव द गुड सर्विस, क्वालिटी से काम कीजिए, देखिए क्या इंपैक्ट आता है, लोग आपके कितने जुड़ेंगे। पता नहीं लोग क्या नेचर है कि बस एक बार यार क्या होगा उससे, एक तो गुडविल लॉस होता है। अच्छा वो आदमी आपके बारे में 20 बार गलत बोलेगा, दोबारा कभी काम नहीं कराएगा आपसे, यू आर लूजिंग योर कस्टमर बेस। समझना चाहिए, गलत कभी कॉम्पिटेंट बनो, अच्छे बनो और अच्छी सर्विस दो, अच्छा काम करो, लोग आपके पास बार बार जुड़ेंगे और आपका नाम भी, गुडविल भी बनती है, खाली इट्स नॉट मनी ओनली। एनीवे, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि साहब ये किस तरीके से एनालाइज करना। अब इसको सारी चीज को रिलेट करते एग्जाम्पल लेते हैं। आपको गलत है किसी ने किया है तो इस लॉ में नहीं, किसी न किसी लॉ में जरूर फंसेगा और उसको डेफिनेटली पनिशमेंट होगी, लेकिन नॉट नेसेसरी अंडर। अब यही क्वेश्चन मैंने बनाया कि साहब 10 लाख वाला ये आ जाए एग्जाम में कि साहब अकॉर्डिंग टू द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हैज दैट पर्सन डन एनी ऑफेंस? आंसर इज नो, इस एक्ट के हिसाब से नहीं, बिकॉज इस एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस में आ ही नहीं रहा। जब शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए लेट्स से सम पर्सन ए, दिस पर्सन ए has asked some other person B that you murder X. मान ले B को कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, A ने B को X से क्या दी थी, सुपारी। ऐसे बोलते हैं ना फिल्मों में, ये फिल्मों में एक्चुअल लैंग्वेज है, बॉम्बे में ऐसी लैंग्वेज लोग यूज करते हैं। अच्छा B इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, A हैज आस्क्ड B यू मर्डर X, क्लियर। मैं आपको एक प्रॉपर्टी दूंगा बदले में जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए, 1 CR। यू डू माई वर्क, आई विल गिव यू अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹1 करोड़, क्लियर। A के ऐसे कहने पे B बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट किलर इसने X का मर्डर कर दिया, बदले में B को A से प्रॉपर्टी मिल गई ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 करोड़। फर्स्ट टेल मी, हैज B डन सम ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? अब उसको फिर अप्लाई करके देखते हैं। Whosoever acquires, owns, possesses, has he acquired a property? And whosoever acquires, owns, possesses, or transfer any proceeds of crime. Now I have to check whether property which B has got from A, whether it's a proceeds of crime, means any property, अभी पढ़ा था, derived or obtained directly or indirectly by any person who had derived B as a result of a criminal activity relating to scheduled offense. क्या इसने X का जो मर्डर किया बदले में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली, क्या ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है? यस। किसमें? पार्ट ए में या पार्ट बी में? पार्ट बी में। अब समझ आ रहा है, सारी रिलेट करते जाइए, ठीक है, आ रहा है। इज अ B को जो A से प्रॉपर्टी मिली, इट इज अ एंड B हैज डन अ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, क्या B को पनिशमेंट होगी? He has done the offense of money laundering. Is that clear? आगे देखिए आप, B ने मान लिया फ्यूचर में प्रॉपर्टी C को सेल कर दी, प्रॉपर्टी सोल्ड टू C,
बदले में सी ने बी को कैश दिया, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी सेल करेगा। इसने बी को क्या किया, कैश दिया। और सी को यह पता था कि बी जो मुझे प्रॉपर्टी बेच रहा है, हाउ ही हैज गॉट दैट प्रॉपर्टी, ये सी की नॉलेज में है। मुझे बताइए क्या सी इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? हूसएवर नोइंगली, पता है कि साहब इसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, आप उसी को परचेज कर रहे हैं। एंटर्स इनटू एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इन दिस एग्जांपल क्या सी विल आल्सो बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? यस। बी को जो कैश मिला क्या ये भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है? यस। आई बता ना, एनी प्रॉपर्टी और लास्ट में और द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, है ना, सब चीज लिंक होती जा रही है। यस और नो। अब इसके बाद जो कैश आ गया, इसको ये अगर कंसील करता, छुपाता है, या कोई प्रोफेशनल्स एंड ऑल दैट इसको हेल्प करते इन कंसीलिंग दैट, क्या वो भी ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? यस। बताइए, अब सारा चीज कवर हो गया। Whosoever acquires, owns, purchases, transfers, whosoever knowingly enters। अच्छा, मान ली इस केस में सी को ये बात नहीं पता होती कि हाउ बी हैज गॉट दैट प्रॉपर्टी, नहीं पता होती, तब सी गिल्टी होता? नो। इसलिए नोइंगली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे, कि अगर आपने अनइंटेंशनली, आपको पता नहीं है, एंड की दैट प्रॉपर्टी विच आई एम बाइंग फ्रॉम बी हैज बीन एक्वायर्ड बाय ए बाय इंडल्जिंग टू क्रिमिनल एक्टिविटी, नहीं पता है सी को, तो फिर सी विल नॉट बी गिल्टी ऑफ। ऐसे वहां लिखा था नोइंगली, क्या लिखा था? नोइंगली। एक एक वर्ड बहुत, अब ये क्या होता है, मैं एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एग्जाम में मान लें इसी क्वेश्चन आ जाए, आप लिख रहे हैं, आपने नोइंगली वर्ड लिखा ही नहीं, आपने लिखा ही नहीं, तो बच्चों को कई बार इसे मजाक लगती है, यार क्या हो गया, वैसा तो लिखा है, क्या हो गया, मीनिंग ही सारा बदल जाता है। अच्छा देखो, अभी नोइंगली था तो गिल्टी है, नोइंगली नहीं है तो क्या गिल्टी नहीं है, और आप बोलते थे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। यू हैव टू वेरी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट। ये चीजें मैं इसलिए हैबिट सिखाते को, क्या होता है, ये सब तरीके में होता है, थोड़ा मुश्किल तरीके हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हमेशा तो सक्सेस इज नेवर इजी। सक्सेस इज नेवर इजी, सक्सेस इज ऑलवेज डिफिकल्ट। यू ऑलवेज टेक द डिफिकल्ट रूट्स, डिफिकल्ट पाथ्स टू गेट सक्सेस। इजी पाथ्स कभी भी सक्सेस नहीं जाती। ये लाइफ का बेसिक फंडा है कि जो लोग ज्यादा इजी के चक्कर में भागते हैं जिंदगी में, कभी भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, किसी से जुगाड़ बना के लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, बट क्वेश्चन if you really want to become successful, you have to take the difficult paths। अच्छा, डिफिकल्ट चीजें इजी हो जाती है जब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, सब चीज इजी होती है। लोग घबराते इतना, सर हम इतना लॉ ये वो कैसे। अच्छा एक चीज बताओ, आप में से आई थिंक मोस्टली आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉन कॉमर्स से भी कोई है? ठीक है, आप हैं 2-3 बच्चे, ठीक है, मैक्सिमम कॉमर्स बैकग्राउंड से। आपने 11th-12th में, ग्रेजुएशन में, फाउंडेशन में थोड़ा बहुत तो लॉ पढ़ाई करनी है, कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ, ठीक है। आई ज्वाइन CS आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। माई ग्रेजुएशन इज BSc मैथ्स ऑनर्स। तो मतलब ग्रेजुएशन तक लॉ की ABCD भी नहीं जानते थे, ऑब्वियसली कहां जानेंगे भाई। 11th-12th साइंस, ग्रेजुएशन साइंस, ठीक है, मैथ्स ऑनर्स, BSc मैथ्स ऑनर्स, साइंस से साइड से थे, कहीं लॉ पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद मैंने CS और LLB दोनों एक साथ किया, ज्यादा डेयर कर दिया था, एंड दोनों कोर्स एक साथ किया था मैंने। 95 आई ग्रेजुएटेड, 95 ज्वाइन बोथ द कोर्सेज, 98 आई क्वालिफाइड बोथ द कोर्सेज। तो आपको जब मैं समझ सकता हूं, मेरा तो टोटली फील्ड ही नहीं था, मैंने कोई टर्म तक नहीं सुन रखे थे, इट वाज एवरीथिंग न्यू फॉर मी। तो बस समझने का तरीका सही होना चाहिए। मैं बार बोलता हूं, तरीका जिसका सही है, एफर्ट एकदम रिजल्ट देंगे। तरीका गलत है, कितनी भी मेहनत करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमेशा हम देते हैं, अगर एक डोर अंदर की तरफ खुलता है, पुश, आप उसको पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जोर तो ज्यादा लगा रहे हैं एफर्ट, लेकिन ये ना रॉन्ग डायरेक्शन, क्या दरवाजा खुलता है? लेकिन अगर पुश करने में खुलने वाला हल्का सा ही पुश करेंगे दरवाजा, इसका डायरेक्ट, कम एफर्ट बट इन राइट डायरेक्शन। ज्यादा एफर्ट रॉन्ग डायरेक्शन लगे तो रिजल्ट तब भी नहीं आते। और होता क्या, मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने देखा है, वो काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, बट डायरेक्शन लेस है, तरीका नहीं पता कैसे करना है, और उसके कारण क्या होता है, उनको रिजल्ट नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एनीवे, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डेफिनेशन एंड मीनिंग सबको क्लियर है? उसको हमसे रिलेट किया प्रोसीजर ऑफ क्राइम, उसको रिलेट किया शेड्यूल ऑफेंस, और दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द एंड मेन डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इस चैप्टर में जो आगे की चीजें दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, और मैंने बेस बना दिया है, तो अगली क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है एंड इस तरीके से आगे चलेंगे, ठीक है। आई होप सबको मटेरियल मिल गया। चलिए, थैंक यू।